भी बच्चों के समझने की जरूरत है कि जितना अच्छा हमारे पेरेंट्स हमारे लिए कर सकते हैं, हमारे लिए सोच सकते हैं, उतना कोई भी XYZ कभी नहीं करेगा, ना कभी सोचेगा भी होता है। बहुत पेरेंट्स ऐसा भी बोलते हैं कि मैम उनको तो कुछ पता ही नहीं है, अभी तो बच्चे हैं, वो कैसे अपने करियर का डिसीजन ले सकते हैं। आई एग्री टू दैट, बट देन आई से कि लेट देम एक्सप्लोर। एक्सप्लोर तो करने दो, क्या करना चाह रहे हैं क्या नहीं करना चाह रहे हैं। So, hey guys, welcome once again to yet another episode of the talk show, which we have been hosting for all of you and bringing in remarkable guests on our panel. And today we are joined by Dr. Smriti Jain. Dr. Jain, a gynecologist and obstetrician. She is the brain behind the reputed Dr. Smriti Women's Clinic and Diagnostic Center, which is acclaimed as the best gynecology center in the Noida extension. She has more than 11 years of experience in both private and government establishments. Dr. Jain ने लेडी हार्डिंग मेडिकल में भी काम किया है एंड ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में भी मैम काम कर चुकी हैं. फोर्टिस, नोएडा, अपोलो हॉस्पिटल, मूलचंद, a lot many places she has given her services, and today she is here. The list is long, and she is a very versatile, and right now she told me that they are working in the area of sex education, adolescent sex education as well, in which they are talking, giving, guiding youth. तो डॉक्टर जैन से ही समझ लेते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, कैसा काम कर रहे हैं गायने और ऑप्स के क्षेत्र में. हम बहुत कुछ उनसे जानकारी हासिल कर सकते हैं. सबसे पहले तो मैम, थैंक यू सो मच. बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड कि Thank you, आपने Purnji. And I think both of us can actually make this discussion very fruitful working together, because as we see your profile also, you have a very, I'll say again, a very varied profile with a lot of experience in social work and clinical work. So I feel we both of us can make this show and this talk very fruitful for our listeners also. Uh, and yes, as you say that I have worked in various government and private hospitals, which gives me an advantage of looking at both the scenarios, how urban population looks at it, how rural population is, what the underserved communities are going through, what we are facing. So looking at that, one of my consultants, I'll say, when I was in GTB is a hospital in East Delhi, so I did my SRship from there. So she only came up with an idea that we have to make a foundation which works for adolescent health mainly, right? So it was an association which was made a year back only, and we are still in that initiation phase. But yes, we are looking very closely at sex education and what the contraceptive needs, maybe what the children or adolescent basically they need, how to tackle teenage pregnancies, how to tackle teenage abortions. So there's a lot of sensitive area which needs discussion, because the society in which we live in is I think that we have a very moral society, if I say, and very judgmental also. So it needs a lot of courage to talk about it also, and also to talk to kids how to handle pregnancies and how to handle their contraceptive needs also. यस मैम, थोड़ा बोल्ड टॉपिक है डेफिनेटली व्यूअर्स, लिसनर्स, लेकिन जैसा कि डॉक्टर जैन कह रही हैं, एक गायनेकोलॉजिस्ट हैं, ये नीड ऑफ द आवर है. मैंने भी एक इंस्टीट्यूशन में काम किया वेयर आई वाज सीनियर काउंसलर, एंड जहाँ पर की मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इफ अ वुमेन इज 18 years plus, so it is her right to legally get her pregnancy terminated, right मैम? सो लेकिन इतने सारे केसेस आते हैं अनवेड प्रेगनेंसीज के, अनवेड मदर्स के. तो कहीं ना कहीं डॉक्टर जैन, आप क्या फील करती हैं कि क्या जरूरत है इस समाज को अब इस I think एरिया everybody of us should see OMG 2, oh my god 2. It's a very sensitive topic but very beautifully tackled. I think उसमें उन्होंने बहुत sensitively touch किया है इस topic को. This is what actually the need of hour is.
Kids Yeah. are looking into things, kids are going into and searching for information, because see, their body is changing. If we talk about adolescent group, their body is changing, they're changing physically, they're changing mentally, उनके emotions उन पे हावी हो रहे हैं. Try and explore their self, they try and explore their bodies, their needs, they're exploring all of that. And again, as I say, there's a hesitation in our society about openly discussing about these things, right? Specifically parents, I'll say, there is a hitch, there's hesitation. So that is why the kids, they go on and they search the net, they talk to their peers, they maybe just go to whatever information they get from anywhere, and then they start practicing it. Sometimes there's no information, only they don't get it from anywhere, so they're Right. just on their own and just figuring out what to do and what not to do. So I think that is, yes, it is important, we need to address these things, it is very important. And again, we have to somehow go and see what they need to and what has to be done in this. जी जी मैम, ग्राउंड रियलिटी, आपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल, प्राइवेट सेटअप, हर एरिया में काम किया है, तो वही सवाल और एडोलेसेंट और यूथ के ऊपर ही मैं रखूंगी कि आपके पूरे टेन्योर में आपने कैसा, आपको आपका एक्सपीरियंस रहा कि जो एडोलेसेंट प्रेगनेंसी है उसका रेट तरह से if we talk about if we talk about the rate or the incidence, I'll say almost what the stats say is 1 in 7. Obviously, I don't have my personal stats, but what the stats says for India, it is almost 1 in 7 pregnancies they are from adolescents. सात में से एक लड़की जो pregnant हो रही है, she's an adolescent, right? And what our legal laws say that if अगर कोई लड़की 18 साल से कम है and she's unmarried and she gets pregnant, okay, so that is comes under rape actually, even if it is with consent or without consent. Okay. Nobody asks for a consent whether you have consented for it, because they say that if you're not a major, then you can't consent, your consent is not valid, right? So if a girl is less than 18 and she becomes pregnant, then फिर वो consent का issue रहता है, and we have to go through a proper channel and process. We have to inform the police, we have to inform the social workers if the girl comes directly to us, right? And we have to do all that, because then the police plays a role, the POCSO Act is there are many acts around it, so they take a lead and then they investigate into it, and then yes, the girl's part is being taken care of by the medical professional, that abhi kya karna hai, is there any history of sexually transmitted infection which needs to be taken care of, is she actually pregnant, or there's just an act which the parents or the family has discovered, and then what can be done. Then again, abortions. So we talk about abortions less than 18 years, it has to come through a guardian. A girl cannot directly approach. This is what our law says, that she can't come on her own unless until she's married. Then the laws are different for somebody who's married but less than 18, and somebody who's unmarried and less than 18. So unmarried have to come with a guardian for an abortion. We can't just prescribe them or maybe help them like the way we do those who are more than 18 years of age. So that is the main problem there, because what government says that maybe they're not mature enough mentally also to understand what has been done and to go through the procedure and maybe post procedure care. So that is why they say no, we need to inform the family, we need to involve the family and the police also in case there's any foul play which is being suspected. So that is how we go about it in case somebody approaches. Oh, okay. Ma'am, just in case 18 years and less, the boy and girl, and it is a consent, and they say that they are in love, and that no law doesn't listen to all that, because it's written, so we have to abide by the law. वो चाहे कुछ भी कहें, but ठीक है, इसकी वजह से yes, there are cases where there have been problems to the boy family also, and then they settle it out on their own, on their terms. But yes, there are some cases जहाँ पे problems आती हैं ऐसे, बहुत बार ये raise भी करते हैं लोग question that what it is consensual, the kids are mature enough to understand, but we can't go beyond law. We have to follow what we have to abide by our laws, what the law says. अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ लिख दिया है कि ये ऐसे करना है, तो हमें वो वैसे ही करना है till the time we change the law. We have to abide by it. अगला सवाल मैम, above 18 years of age, if the girl is above 18 years of age, and then how do we go about it? See, we can go about it. But the girl, she needs to understand the consequences, what she is about to do.
क्या आगे फ्यूचर पे क्या कॉन्सिक्वेंसेज है उसके, अभी क्या कॉन्सिक्वेंसेज है, क्या व्हाट ऑल थिंग्स शी अंडरगो इफ शी अंडरगोज एन अबॉर्शन, वो सब कंसेंट के साथ. And if one person is around her when she's undergoing, because see, out of 100, 95 to 97% of abortions, specifically if detected early, if we are able to do it in initial months, we are able to do it like that. We don't need much of a help from anybody. But 3 to 5% they yes complicate. By complicate I mean there is a risk of heavy bleeding. ये सब risk रहते हैं. So it is always better to go to a professional and talk about it. This is I would take this in fact an opportunity to tell this to the listeners that please don't hesitate to go to a doctor and talk about it. Okay, everybody is not judgmental in this. You can't just see कि वो भी judgmental होंगे, they'll judge me, they will maybe, instead of going to a quack या किसी भी आप लोकल से जाके दवाई ले, उससे ज्यादा सेफ है कि आप किसी डॉक्टर से जाके मिले, राइट, एंड समझे उनसे, क्योंकि सिर्फ प्रेगनेंसी नहीं अबॉर्ट करनी है, हमें आगे का कॉन्ट्रसेप्शन भी समझना है कि हमें आगे क्या करना है कि हम बार बार इन सब चीजों में ना जाएं, या हम कैसे अपने आप को प्रोटेक्टेड रखें, राइट. तो बहुत सारी चीजें हैं इसके अराउंड. तो अबॉर्शन की बात है तो यस वी कैन डू इट मेडिकली इफ डिटेक्टेड अर्ली. बट यस, अगर हॉस्पिटलाइजेशन का नौबत आता है बिकॉज ऑफ एनी रीजंस, मान लो इट हैज बीन डिटेक्टेड लेट, तो फिर वी हैव टू इन्वॉल्व समबडी फॉर कंसेंट, and that guardian could be anybody. Well, maybe the friend, maybe some whosoever can consent, whosoever is above 18 years, we can take a consent from them. So that can be done. But it is always better to avoid such circumstances, to be aware of what safe sex is, to be aware of what contraceptives you have at hand to use if you are into a relationship with somebody. So I feel that is more important. And if yes, by chance, by mistake, you fall pregnant, please see a doctor. Don't try anything on your own. That can sometimes be risky. Ma'am, when you're saying anything on your own, I have heard and I've seen that sometimes people take pills. Yeah. By taking oral medication. Is it how safe is it to take oral medication? And is it true that by oral medication the pregnancy gets completely? Obviously we also give such medications also. ऐसे कोई अलग-अलग 2 तरह या 3 तरह की medicines नहीं है जो हम देते हैं, हम बोले कि जो आपको on the counter available है वो different है, जो हम दे रहे हैं वो different है. But yes, it is more safe. By out of 100, I'll say 90 pregnancies are okay. They are inside. They're well placed. Some pregnancies are outside place. We call it an ectopic pregnancy. There are many complications associated. Plus we need to know कि कितने महीने की pregnancy है. सबसे ज़्यादा ज़रूरी वो है. आपको नहीं पता, बच्चों को नहीं पता कि कितना महीना हुआ है, क्या होता है, ये सब बहुत technicalities हैं. तो ये सब चीजें बच्चों को नहीं पता. It is just a desperate attempt to get rid of that pregnancy, whatever gestational age they may be in. Right? कोई अगर 10 weeks या 3 महीने पे अगर दवाई खा ले, तो she might bleed so heavily that she might land up in an operation theater for a DNC with blood transfusion in an ICU requiring multiple blood transfusions. Right? तो बहुत सारे complications इनके साथ हो सकते हैं. So they're not just like I'll say toffee नहीं है कि हमने लिया और खा लिया. Especially for kids who are not aware of it, जिन्होंने कभी यूज नहीं किया है या कभी डॉक्टर्स के साथ बात नहीं किया है कि कैसे लेना है, क्या करना है. So it is always safer to consult and then consume those pills. Side effects में mainly bleeding का सबसे बड़ा side effect होता है. कभी-कभी बहुत heavy bleeding हो सकती है. And many times it becomes ऐसा होता है कि आपने दवाई ले लिया, आप थोड़ा सा bleeding हो, आपको लगा चलो abortion हो गया, and the pregnancy continues. Right? And then they come back at 4th month, 5th month saying कि मैम हमने तो दवाई लिया था, it is not aborted, now what do we do? Right? So there are many things which we see day in day out. Again, I'll say the number is less. I'll say it is just 10% of the cases जो ऐसा होता है. 90% निकल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं. इसलिए लोगों को लगता है कि maybe over the counter available है, freely available है, we can just take it and हम free हो जाएंगे. But no, it is not like that. आपको अगर आप कुछ ऐसा कर रहे हैं तो you have to be 100% safe. You can't be so sure कि आप उस 10% में नहीं आओगे, मतलब आप 90% में ही रहोगे. तो किसी को कंसल्ट करने में मुझे लगता है कोई नुकसान नहीं है. That will be in fact safer for you. Ma'am, how safe is it for a young girl to have an abortion? As I told you कि abortion के साथ risk होते हैं, जैसे heavy bleeding. I've seen girls ending up with septic abortion. Septic abortion mean कहीं भी गए, किसी से भी जाके कहीं गांव में करा लिया,
कि डॉक्टर के पास जाएंगे तो फिर वो सब में बात फैलेगी, गुपचुप गए किसी के पास, सपोज फैमिली को ही पता लग गया, तो फैमिली जी टेक्स them to a nearby nursing home or maybe just a nearby doctor whosoever is available. He may not or she may not be a qualified gynecologist also. कई बार तो MBBS भी नहीं होते हैं, and they just go there and ask for an abortion. I've had one case where the intestine was coming out of the cervix. Okay, so I was in GTB at that time, and we lost that girl after some time. Okay, in I think a week's time. So it could be that risky. Okay, if it is not tackled properly or if it is not taken care of properly, right? अगर हम शुरू करें कि क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो ब्लीडिंग से लेके, ब्लीडिंग है, पेन है, फिर आगे जाके आपको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ सकती है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ सकती है, इन्फेक्शन का रिस्क होता है, बहुत सारे रिस्क हैं। ऑल्दो सबकी प्रोबेबिलिटी कम है, बट यस इट इज नॉट दैट कि वो 0% है, सब चीजों की प्रोबेबिलिटी है। सो इफ यू नॉट इन सेफ हैंड्स, देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि ये चीजें आप फेस कर सकते हो इफ यू आर अंडरगोइंग एन अबॉर्शन। इसलिए इट इज ऑलवेज बेटर टू बी अंडर समबडीज सुपरविजन व्हेन यू आर गोइंग अंडर एन अबॉर्शन। जी जी मैम, आप क्या सलाह देना चाहेंगे व्हेन यू टॉक अबाउट सेक्स एजुकेशन, सो बॉयज एंड गर्ल्स, from your end, when you like what kind of sex education आप You ये have क्या to, they educate have to आप behave maturely. They have to behave maturely. That is the only thing. And no sex under any influence like alcohol, drugs. सबसे बड़ा problem वही cause करता है. And always a condom. Always, whatsoever may happen, never ever do it without a condom. You're not sure what the other person is carrying, what kind of infections he or she is carrying. You're not sure, right? I'm not suspecting that somebody is suffering from an infection, but then you're not sure about it, right? So you have to keep yourself safe. So not only from an unwanted pregnancy, but yes, from many infections, sexual transmitted infections also, जो आगे जाके आपकी फर्टिलिटी को भी इफेक्ट करते हैं। आप हो सकता है आगे जाके आप कंसीव ही नहीं कर पाए अगर आपको वो इन्फेक्शन हो जाए, जो अनडायग्नोज जाता है बहुत बारी। तो आगे जाके ऐसा होता है कि आपकी ट्यूब्स ब्लॉक्ड है, आपको कभी पास्ट में इन्फेक्शन हुआ था जिसकी वजह से यू आर अनेबल टू कंसीव नाउ, नहीं। तो अगर हम शुरू करें तो यहाँ से शुरू होता है वो। तो बच्चों को जो जो एडोलेसेंट ग्रुप के बच्चे हैं, जो बड़े हो रहे हैं, उनको लग रहा है वो बड़े हो रहे हैं, and yes, they're growing up now also, I don't deny that fact. So what I would say is it is always better to first understand and read about it, what you're going through और क्या क्या problems है। And I think parents का इसमें बहुत बड़ा role है, they have to be open with their kids, right? अगर उनको ऐसा कुछ लगता है कि बच्चा कुछ कर रहा है, देखो हम पेरेंट्स हैं, हमें समझ आ जाता है बच्चों को देख के कि द चाइल्ड इज गोइंग थ्रू समथिंग, है ना। ऐसा नहीं है कि हम अपने बच्चे को नहीं पढ़ पाते हैं, वी कैन रीड व्हाट आर दे गोइंग थ्रू। स्पेसिफिकली ये एज ग्रुप के बच्चे, जैसे जब वो प्यूबर्टी अचीव करते हैं रफली 13 से 15 साल के बीच में, तब हम सबको पता है कि दे आर गोइंग थ्रू समथिंग, सो वी नीड टू बी मोर विजिलेंट अबाउट देम, अबाउट देयर एक्टिविटीज। तो मुझे लगता है सही समय आने पे उन्हें ये सब चीजों के बारे में बता देना कि यू नीड टू बी मोर केयरफुल, it is okay that if you are involved with somebody, but then you need to be safe from your side। तो वो क्या safety measures हैं, right? And क्या करना है, if there's a problem you need to, so that if there's a problem they can come back to their parents, right? I know it is thinking to, this is too progressive what I'm saying, we may not have ऐसे parents also, though ये बोले कि it is okay if you do this, but then I think जो हम जितना westernization या जितना western culture को हम follow कर रहे हैं, धीरे धीरे शायद एज पेरेंट्स हमें भी बदलना होगा। वो थिंक नीड ऑफ द आवर है, वी हैव टू चेंज ग्रेजुअली, बिकॉज अभी भी ये सब चीजें बहुत प्रेवलेंट हैं। लिव इन इज वेरी कॉमन नाउअडेज, every other kid once they go to college they are in living with their friends or something, so I feel कि उनको ये सब समझाना, उनको ये बताना बहुत जरूरी है कि ठीक है आप ऐसा कर रहे हैं, it is okay, but then how you have to be safe। ओके, तो कुछ हद तक मुझे लगता है पेरेंट्स या मे बी कहीं कहीं पे स्कूल में कुछ आप स्टार्ट कर सकते हैं, या मे बी ऑनलाइन इफ दे कैन एक्सेस टू समथिंग। एक और चीज इसमें बोलूंगी, इफ यू आर ट्राइंग टू एक्सेस समथिंग ऑनलाइन, राइट, डोंट गो बाय द वीडियोस और ब्लॉग्स बाय समबडी हु इज नॉट इवन क्वालिफाइड टू डू दैट। सबसे बड़ा प्रॉब्लम वहां आता है जब आपको गलत इन्फॉर्मेशन मिलती है और आधी इन्फॉर्मेशन मिलती है ऑनलाइन। बच्चों को सबसे बड़ी दिक्कत वो आती है, कोई भी वेग वेबसाइट पे जाके, किसी भी वेग ब्लॉग को पढ़ के वो कोई एक नोशन बना लेते हैं, वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अगर आपको कुछ जानना है, कुछ समझना है, विजिट ऑथेंटिक वेबसाइट लाइक फॉर कॉन्ट्रसेप्शन, we have a website of Ministry of Health and Welfare, you can very well visit that website and read something about contraception, okay, क्या लेना। and again वो सब भी मैं समराइज करूँ तो मैं बोलूंगी प्लीज ऑलवेज यूज अ कॉन्डोम, ऑलवेज। अगर मैं सब कुछ समराइज कर दूं कि आप और कुछ यूज करो ना करो,
कोई और कॉन्ट्रसेप्शन यूज करो ना करो, नेवर एवर हैव सेक्स विदाउट अ कॉन्डोम. आई थिंक दैट कम्स बेस्ड, एंड वो आपको बहुत चीजों से प्रोटेक्ट करेगा. इट इज इजीली अवेलेबल ओवर द काउंटर, आपको सब जगह मिलेगा, किसी से बात करने की जरूरत नहीं है, कुछ पूछने की जरूरत नहीं, इट इज फ्रीली अवेलेबल. तो एटलीस्ट उतना एज सेक्स एजुकेशन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि एटलीस्ट आप वो उतना यूज करें. राइट, वेरी राइटली यू सेड मैम. एक्चुअली जब आप बता रहे हैं तो क्योंकि मैं खुद एक मदर हूँ ऑफ 2 टीनेज बॉयज, और हम इस बारे में बात भी कर रहे हैं, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग मतलब वेरी क्योंकि हम डिफिकल्ट. ऐसे बॉर्न एंड ब्रॉट अप हम हुए हैं, जबकि मैंने उस सेटअप में काम किया है, बट मेरे खुद के बच्चों के साथ अब मैं बैटम मुझे खुद पर्सनली नहीं समझ आता. मुझे लगता है कि मैं समझ तो रही हूँ, लेकिन ये बात कोई और उनको बता दे. मुझे ऐसा लगता है फॉर बॉयज, इफ द फादर्स टेक बहुत लीड, इनहिबिशन है. तो अगर मुझे ये इनहिबिशन हो सकता है, तो एक आई एग्री. जनरल इंडियन पेरेंट को बिल्कुल है, बहुत मुश्किल है बहुत अपने बच्चों के साथ ये मुद्दे पर सेक्स एजुकेशन के ऊपर या उनकी सेक्सुअलिटी के बारे में बात कर पाना. ये मेरा पर्सनल व्यू है, क्योंकि तो आई फील दैट आई एम अ प्रोग्रेसिव पेरेंट. मैम, व्हाट अबाउट यू, स्मृति मैम? See, I have आर two यू अ daughters. पेरेंट? Yeah, यस. I have two daughters. So क्या? although my elder one is just, I'll say 9, she 9 years, so she'll be entering her teens maybe in a year or so. But yes, this is what we also discuss, because yes, we are looking at two daughters. We have to be even more cautious with them, and looking at the present scenario, we can't restrict many things. If we restrict them, then we are restricting their horizon, their scope of maybe succession, what they can learn in life. So we can't restrict them from anything. We have to just give them free boundaries. What I feel, they say, if you have girls, the mother can take lead and talk about it, because they can correlate with you, they have the same body, right? Same way for boys, the fathers can take lead and talk about it. उसके लिए वो इक्वेशन होना बहुत जरूरी है. इक्वेशन एक दिन में कभी नहीं बनेगा बच्चों के साथ, एंड एक एडोलेसेंट के साथ बनाना तो शायद बहुत ही मुश्किल है, बिकॉज वो ऑलरेडी उस फेज में है कि माँ बाप तो दुश्मन है, वो जो कहेंगे वो तो कुछ गलत ही कहेंगे हमारे बारे में, शायद वो शायद हम, बट मुझे लगता है कि वो इक्वेशन आप धीरे धीरे सेट इन कर सकते हैं, इफ नॉट फ्रॉम डे वन, but maybe over a period of 5 months, 6 months, you have an equation with them. Anyways, they're looking out for friends. तो वो शुरू होता है पहले उनको हर चीज में सपोर्ट करने से. सेक्स एजुकेशन तो बहुत बाद में आता है, पहले उनकी रूटीन की नीड्स को आप सपोर्ट करना शुरू करिए, उनके साथ बैठ के बात करिए, अंडरस्टैंड व्हाट दे आर गोइंग थ्रू, स्टॉप रिएक्टिंग. सबसे जरूरी है, इफ यू वांट टू बिल्ड अ बॉन्ड, स्टॉप रिएक्टिंग, स्टॉप बीइंग जजमेंटल. थिंक, अगर आप उनकी जगह होते तो आप क्या करते, राइट? वो बहुत जरूरी है. जब आप उस एज ग्रुप में थे तो आप क्या करते थे, आप कैसे रहते थे. मतलब ये मैं सिर्फ अपने बच्चों के लिए नहीं कह रही, शायद मैं ये डेली रूटीन में भी ये प्रैक्टिस करती हूँ, दैट you have to think in by wearing the other's cap, or maybe going in their shoes, what they are going through, उनको क्या फील हो रहा है, उनको कैसा लग रहा है. मुझे लगता है अगर हम बच्चे बन के सोचें, हमें थोड़ा टाइम लगेगा, बट आई थिंक ओवर 5 to 6 months we'll be able to build up that relation. अगर आप वो रिलेशन बना लो कि आपका बच्चा कुछ भी करके आ रहा है, आके सबसे पहले आपको बता रहा है, तो मुझे लगता है शायद वो चीज आ जाए, तो उसके बाद आप उनको बहुत चीजों में हेल्प कर पाओगे. प्रॉब्लम यही है कि हम वैसे पेरेंट्स बने रहते हैं कि नहीं, ये गलत है, ये गलत है, हम इसके बारे में बात नहीं करते. मूवी देख रहे हो साथ में तो आप मूवी का चैनल चेंज कर देते हो, सीन पॉज कर देते हो, उस बारे में बात हो रही है तो आप बच्चे को बोलने लगते हो नहीं तुम ये गलत कर रहे हो. तो देखो, आप मना करोगे तो वो कहीं ना कहीं जाके वो कर लेगा, वो देखेगा जरूर, आपके साथ नहीं देखेगा, फ्रेंड्स के साथ देखेगा, रात को छुप के देखेगा. ओके, देखो वो जरूरी भी है, एक इनोवेशन पेरेंट एंड बच्चों में होना चाहिए थोड़ा सा, वो जरूरी भी है, बट देन दे शुड आल्सो अंडरस्टैंड दैट यू हैव बीन थ्रू दिस, एंड मे बी यू कैन अंडरस्टैंड देम बेटर दैन देयर फ्रेंड्स और दैन समबडी एल्स इन सोसाइटी. जब उनको ये समझ आ जाए कि अगर वो आपके पास आते हैं आप उनको बेहतर समझेंगे, तो वो डेफिनेटली आके आपसे अपने प्रॉब्लम शेयर करेंगे, तब आपको उनको गाइड करना है. सो आई फील एक टीनेजर को हैंडल करने का यही सबसे एक तरीका है. बाकी हर बच्चा अलग है, हर पेरेंट अलग है, हर पेरेंट हर बच्चे के लिए उसमें भी कुछ वार्निंग साइंस होते हैं. आपको लगता है आपका बच्चा किसी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से निकल रहा है, देखिए ये सब जो एक्टिविटीज होती है ना, हम इसको हाई रिस्क बिहेवियर बोलते हैं. Getting involved with multiple girls or maybe boys, and then consuming alcohol, consuming cigarette, drug abuse है, ये सब हाई रिस्क बिहेवियर में आता है. एक बच्चा हाई रिस्क ऐसा बिहेवियर दो कंडीशंस पे शो करता है. पहला, या तो एक्सपोजर बहुत ज्यादा है एंड देयर इज नो डिमार्केशन बिटवीन व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग. ओके. दूसरा, इफ ही कम्स फ्रॉम अ डिस्टर्ब बैकग्राउंड और मे बी डिस्टर्ब सराउंडिंग्स, लाइक सपोज स्पीयर प्रेशर है इस चीज का कि नहीं ये सही है, सब कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, तो आई हैव टू आल्सो डू.
तो उसमें अगर आपकी पेरेंटिंग ऐसी है कि आप ठीक है, आपके बच्चे को पता है कि ठीक है ये सब होता है, बट ये मैं करूंगा तो इससे मुझे ये नुकसान हो सकता है, तो even if he's doing, even if she is doing, it will be in moderation. He will not cross her, he will not cross his or her limits. ठीक है। दूसरी चीज, आप अपने बच्चे को ऑब्जर्व करिए। अगर बच्चे के साथ ऐसा लगता है कि बच्चा बहुत एग्रेसिव हो रहा है, छोटी छोटी बातों पे लड़ रहा है, या मे बी बच्चा बहुत साइलेंट हो गया है, नॉट रिस्पॉन्डिंग टू योर थिंग एंड ऑलवेज इन हिज और हर ओन वे, या मे बी द चाइल्ड इज बिकमिंग टू आई से खाने में कोई प्रॉब्लम हो रहा है, लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन एवरीथिंग, ऐसे जब साइंस आ रहे हैं ना, तो आप समझिए कुछ तो गड़बड़ चल रहा है इनकी लाइफ में। तो फिर यू स्टार्ट इन्वेस्टिगेटिंग कि हो क्या रहा है, और हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है, एंड देन ट्राई एंड फाइंड आउट अ वे। बट अगेन आई विल से यू हैव टू कीप काम एंड पेशेंस। नो और रिस्ट्रिक्शन का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर आप उनसे डांट के कुछ कराना चाहोगे तो आप कभी नहीं करा पाओगे, स्पेशली विद एन एडोलेसेंट, you can't dictate terms to them, because they're like they're regaining their as in they're growing up. उनको लग रहा है अब हम बड़े हो गए, अब हम सब कर सकते हैं, हम इंडिपेंडेंट हो रहे हैं, कॉलेज में जाने लगे हैं बच्चे, कॉलेज वाले बच्चे वैसे ही सोचते हैं कि अब वी आर इन कॉलेज, हम बहुत बड़े हो गए। अगर आप उनको पेरेंटिंग सिखाओ या उनको बोलो कि बेटा डिक्टेट करो, तो वो कभी नहीं सुनेंगे आपकी, कभी नहीं सुनेंगे। तो मुझे लगता है शायद इसी तरह आप सेक्स एजुकेशन को धीरे धीरे इनकरेज कर सकते हैं कि कैसे देना है, कैसे वो अपने आप को समझे, वो इस फेज से कैसे निकले। ज्यादातर प्रॉब्लम्स इस फेज में होती हैं जब वो बड़े हो रहे हैं, जब वो ग्रोइंग अप है जी, टाइम पे बताएं तो ज्यादा बेटर है। जो प्रकृति ने जो किया है उसके साथ में, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, कोई गलती नहीं, एग्जैक्टली चेंजेस हैपनिंग विद एवरीबॉडी। अगर ये नहीं हो रहा तो कुछ गलत है। मैं इसलिए जो मैं तब बोल रही थी कि जो हम सोचते हैं कि हम उनके ऊपर कुछ कंट्रोल एक्सरसाइज करेंगे, वो हमें नहीं करना चाहिए। जो मैं बोल रही थी कि हमें उनकी जगह पे जाके सोचना चाहिए, जो आप ये बात बोल रहे हो ये उसी से आती है, उसी से आती है। अंडरस्टैंड व्हाट सर्कमस्टांसेस दे आर इन, they're into too much of pressure from their friends, from the society, academic point of view, they're into so much of stress, मतलब they're unable to cope up everything at a point। मतलब हमसे ज्यादा शायद मेंटल स्ट्रेस में उस टाइम वो लोग हैं, क्योंकि इतने सारे चेंजेस हो रहे हैं आसपास, बोर्ड एग्जाम्स आ रहे हैं, पीएमटी की तैयारी करनी है, एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी करनी है, साथ में एक बॉडी है जो साथ नहीं दे रही है, हार्मोन्स है जो साथ नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल। और उसके अलावा सोसाइटी का प्रेशर है, फ्रेंड ने ये अचीव कर लिया, उस फ्रेंड ने वो अचीव कर लिया, वो फ्रेंड पढ़ने के बावजूद भी सब मस्ती कर पा रहा है, मैं पढ़ने के बावजूद भी उतनी मस्ती नहीं कर पा रहा हूँ, और उसके पास तो सारी फैसिलिटीज है, मेरे पेरेंट्स ने ये नहीं दिया है मुझे, या मेरे को इस सब चीजों का एक्सेस नहीं है। तो मुझे लगता है देखिए ये हमें ही समझने की जरूरत है कि वो बच्चा उसके थ्रू निकल रहा है। तो as a guardian, as a parent, as a teacher, and as somebody who is in contact with an adolescent in any stage of life, in any form, कैसे भी आप एजुकेटर के फॉर्म में हैं, आप उसके पेरेंट के फॉर्म में, आप एनी कोई भी गार्जियन है घर में, so you have to be very open to what they are facing and very open to their thoughts। अब जब तक वो नहीं सुनेंगे बैठ के, तो अपने अपने जो आपकी इच्छाएं हैं आप उन पे डालना बंद करिए। पहले सबसे पहले जब तक आप अपनी इच्छाएं उन पे थोपना नहीं बंद करेंगे, वो एज एन इंडिविजुअल कभी उभर के नहीं आएंगे। मतलब आपको एज अ पेरेंट उन्हें उभरने का मौका देना है कि वो क्या चाह रहे हैं अपने। बहुत बार इसमें ऐसा भी होता है, बहुत पेरेंट्स ऐसा भी बोलते हैं कि मैम उनको तो कुछ पता ही नहीं है, अभी तो बच्चे हैं, वो कैसे अपने करियर का डिसीजन ले सकते हैं। आई एग्री टू दैट, बट देन आई से कि लेट देम एक्सप्लोर तो करने दो, क्या करना चाह रहे हैं क्या नहीं करना चाह रहे हैं। फिर आपको लगता है कि वो कंफ्यूज होके आपके पास आए, तो आप उन्हें रास्ता दिखाइए कि चलो अब ये करते हैं, ये करके देखते हैं। मतलब ये है एकेडमिक स्ट्रेस से निकलने का तरीका। जहां तक पेयर प्रेशर की बात है, पेयर प्रेशर हम शायद बहुत हद तक नहीं कंट्रोल कर पाए, बट यस हम अपने बच्चे को ये बता सकते हैं कि बेटा ये सही है, ये गलत है, ठीक है, अब डिसीजन तुम्हें लेना है। अगर गलत चीज है तो इसके कॉन्सिक्वेंसेज ये हो सकते हैं, सही चीज है तो इसके कॉन्सिक्वेंसेज ये हो सकते हैं। हम हर चीज में आपके साथ हैं, बट हम ये चाहेंगे कि आप अच्छी चीजें अपने हिसाब से डिसीजन लेंगे तो आप आगे के लिए ठीक जाएंगे। उसमें अब इतना बड़ा बच्चा वो लेगा फिर भी अपने हिसाब से डिसीजन, और गलतियां भी जरूर करेगा। हम ये सोचें कि हमने सिखा दिया वो नहीं करेगा गलती, बट वो गलती करके सीखेगा, एंड वो बहुत बड़ा रिस्क लेने से पहले भी आपकी बात सोचेगा कि मम्मी ने या पापा ने मुझे ये बताया था, तो मुझे ये करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो जब एक बच्चे के दिल में वो सब आ जाता है, तो वो सोसाइटी के प्रेशर में भी कम आने लगता है। एंड प्लस ऑलवेज वी शुड गिव देम अ सेकंड लाइन कि अगर ये नहीं होता तो फिर सेकंड ऑप्शन हमारे पास ये है, हम ये कर लेते हैं। तो ऐसे कर करके हम ग्रेजुअली उनका सब तरफ से प्रेशर कम कर सकते हैं। बाकी जहां तक बॉडी चेंजेस की बात है, तो आई थिंक वो तो है ही है, वो तो हो ही रहा है धीरे धीरे, दे विल कम आउट ऑफ इट, दे मे स्पीक टू यू, दे मे नॉट स्पीक टू यू, बट अगेन इफ यू रिड्यूस अदर स्ट्रेसेस,
तो वो उसके साथ बेटर कोप अप कर पाएंगे। जहाँ पे हमारे पास हेजिटेशन है कि शायद हम खुल के नहीं बात कर पा रहे हैं, बट जिन चीजों के बारे में हम खुल के बात कर पा रहे हैं एटलीस्ट उनका स्ट्रेस तो कम करें, वो पार्ट पे तो स्ट्रेस कम कर दें, ताकि बाकी चीजें वो खुद भी कुछ फिगर आउट कर पाए। तो मतलब दिस इज व्हाट माय टेक इज ऑन ऑल दीज थिंग्स, हाउ टू कोप अप विद एन एडोलेसेंट हु इज इनटू so many stresses and mental health issues he's going through. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली मैम, बिल्कुल बहुत सही कहा आपने। मैम आपसे ही ये सवाल बनता है, बिकॉज यू आर अ गायनेकोलॉजिस्ट एंड आप एक लेप्रोस्कोपिक सर्जन भी हैं, बट उसके बारे में मैं बाद में आती हूँ। अभी वहीं रहते हैं फॉर टिल यूथ एंड एडोलेसेंट। किस तरह से आप गर्ल्स को ना केयर करें, वो अपने अपनी बॉडी का केयर करें, क्या वार्निंग साइंस हो सकते हैं जिनमें उन्हें गायने को दिखाने की जरूरत हो सकती है, इसके बारे में भी थोड़ा गाइड करेंगे तो इट विल बी अ वेरी गुड हेल्प टू देम। देखिए, अगर हम अडोलेसेंट ग्रुप की बात करें तो जो उनकी बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं, पहले तो सबसे बड़ा मैं कहूंगी इट्स लाइक देयर बॉडीली चेंजेस, द ग्रोथ्स दे आर सीइंग, वो सबसे बड़ा उनके लिए थोड़ा सा फैक्टर रहता है। उससे बड़ा हिट आता है व्हेन दे स्टार्ट मेंस्ट्रुएटिंग। आई थिंक दैट इज द बिगेस्ट हिट एंड द चैलेंज। कुछ बच्चे बहुत इजीली कोप अप कर लेते हैं, बट आई थिंक उस एरिया में आवर स्कूल्स आर वर्किंग वेल, दे आर वर्किंग वेल। अब अच्छा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं बच्चों को, किड्स आर अवेयर उसके बारे में, एटलीस्ट वी हैव अचीव दैट। बट देखिए, अब हम वहीं से आए हैं। पहले पहले इसको लेके भी एक टैबू था, नोबडी यूज्ड टू टॉक अबाउट इट, राइट? अब हमने उसको कवर अप कर लिया है। तो आई थिंक ग्रेजुअली इफ वी स्टार्ट दिस थिंग टुवर्ड्स सेक्स एजुकेशन आल्सो, धीरे धीरे हम शायद कर पाएंगे। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट आई थिंक हम कर पाएंगे। जैसे हमने मेंस्ट्रुअल चीजों को कवर किया है, अब एवरीबडी इज टॉकिंग फ्रीली अबाउट इट, देयर इज नो टैबू। हम ऐसे नहीं सोचते कि इसके बारे में बात करना गलत है। आई थिंक ग्रेजुअली वी हैव टू ट्राई, एवरीबडी हैज टू गिव इन देयर शेयर ऑफ contribution. Now I'll come back to your question about girls जो face कर रही हैं. So basically it starts with their period problems. So in case they feel that the periods are कुछ प्रॉब्लम है, उनको irregularity लग रही है, पेन लग रहा है या कोई प्रॉब्लम्स लग रही है, तो दे हैव टू रिपोर्ट। और सडनली ऐसा लगे कि पीरियड गायब हो गया तो, और अगर कुछ उनकी सेक्सुअल डिजायर्स बढ़ रही हैं, तो मुझे लगता है बच्चों को एक बारी शुड कंसल्ट समबडी फॉर कॉन्ट्रसेप्शन। ओके, कि कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए। इफ नॉट पेरेंट्स, they can at least go to a professional, a medical professional and talk about it कि I am into this. Again, उसमें वो आता है कि बच्चों को लगता है कि शायद वो बहुत जजमेंटल होंगे, शायद वो हमारे पेरेंट्स को साथ बुलाना चाहेंगे, बट मुझे लगता है आप बात करके तो देखें। क्या पता वो प्रोफेशनल जो उस जगह पे बैठा है, he or she may not be that judgmental, राइट? तो जब तक आप बात ही नहीं करेंगे, तब तक आप कैसे समझेंगे कि क्या होने वाला है। बात तो करें, अगर पेरेंट्स से हेजिटेशन है, किसी से तो बात करेंगे। तो ऐसी किसी भी XYZ से बात करने से अच्छा है कि किसी प्रोफेशनल को अप्रोच किया जाए और उनसे बात किया जाए। तो मुझे लगता है कि वैसे धीरे धीरे इफ दे स्टार्ट डूइंग इट विद अबाउट देयर पीरियड्स, देन हाउ टू टैकल, व्हाट अबाउट देयर पीरियड हाइजीन, हाउ टू मैनेज देयर पीरियड हाइजीन, या तो वो मदर्स गाइड करें। अगर लगता है मदर्स नहीं गाइड कर पा रही है, देन दे शुड गो टू अ डॉक्टर एंड आस्क what do we do, she started menstruating, how to maintain hygiene, how to pad hygiene, whatever hygiene they wish to take. उसके बाद नेक्स्ट आता है फिर बॉडीली चेंजेस के लिए कैसे करना है, हाउ टू कोप विद इट। वो सब चीजें धीरे 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 करके कि ग्रेजुअली हाउ किड्स लर्न अबाउट इट कि कैसे होगा और क्या होगा। देयर आर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, राइट? बट गर्ल्स के पर्सपेक्टिव से, व्यू ऑफ पॉइंट से, व्हाटएवर इज फ्रीली अवेलेबल इन इंडिया इज अ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, राइट? एक वही चीज है जो आप कंज्यूम कर सकते हैं। अगेन देयर इज अ हेजिटेशन इन सोसाइटी सेइंग कि इनसे बहुत साइड इफेक्ट्स होते हैं, ये नहीं लेना चाहिए, आपकी फर्टिलिटी को इफेक्ट करता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स कॉज करता है। सो इन फैक्ट आई वुड टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू पुट दिस थ्रू योर चैनल दैट प्लीज, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप, देयर आर मेनी मल्टीपल टाइप्स ऑफ पिल्स व्हिच आर अवेलेबल। एडोलेसेंट ग्रुप के लिए अलग टाइप ऑफ पिल अवेलेबल है, एक मिडिल एज लेडी के लिए अलग है, ओल्ड एज के लिए अलग है, बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं। तो प्लीज आप जाके डॉक्टर से बात तो करिए, आपको क्या चाहिए, आपकी क्या नीड्स हैं। आप जब तक बात नहीं करेंगे, सिर्फ अपने दिमाग में ये लेके बैठ जाएंगे कि नहीं ये मेरे लिए काम नहीं करेगा, तो फिर दैट्स नॉट गोना वर्क। सो इफ यू आर इन अ रेगुलर रिलेशनशिप, ठीक है, तो पहली बात तो यू नीड टू बी ऑन अ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल। दूसरी बात, मुझे ऐसा लगता है कि अगर दो लोग रिलेशन में हैं, तो जब कॉन्डोम यूज करने की बात आती है, तो इट शुड ऑलवेज बी समथिंग व्हिच शुड कम अप फ्रॉम द गर्ल साइड आल्सो, दैट नो यू हैव टू यूज इट, अदरवाइज वी आर नॉट हैविंग एनीथिंग, राइट? मुझे लगता है थोड़ा सा लड़कियों को भी कभी कभी एक फुट डाउन करके बोल देना चाहिए, because see they are the ones who will suffer at a later stage. तो मुझे लगता है कभी कभी थोड़ा सा अपना स्टैंड लेना भी जरूरी होता है। they can very well go ahead and say कि no, this is what is absolutely required,
उसके बाद अगर उनको लगता है कि नहीं देयर मेनी अदर थिंग्स, देन मे बी देयर इज वन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल. कभी कुछ बोले भटके कुछ हो भी जाए ऐसा, वी हैव इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन आल्सो व्हिच कम्स विद नेम ऑफ आई पिल. ऐसे वाले पिल्स भी होते हैं. बट अगेन दे हैव देयर ओन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज. फेलियर रेट बहुत हाई है, ऑलमोस्ट 15 से 20 12 से 15% फेलियर रेट है उनका, मतलब लेने के बाद भी आप कंसीव कर सकते हैं. प्लस वो एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन ऑफ साइकिल में ले सकते हैं. प्लस इट शुड बी टेकन विद इन 24 आवर्स ऑफ एन अनसेफ सेक्स. ये सब फैक्टर्स हैं एक आई पिल के. बट हाँ, अगर ऐसे कहीं फंसी गए हैं बिल्कुल बहुत बुरी तरह से, तो इंस्टेड ऑफ जस्ट वेटिंग एंड क्राइंग, इट इज बेटर यू टेक वन मेडिसिन. कुछ तो काम करेगी, एंड सी अ प्रोफेशनल एज सून एज यू कैन. ओके, बट उसमें भी आप ये समझिए कि वो आपको इन्फेक्शन से नहीं प्रिवेंट करेगी. जो आपने अनप्रोटेक्टेड सेक्स की वजह से आपको इन्फेक्शन का रिस्क है, उससे नहीं प्रिवेंट करेगी वो आपको. इट मे save you from an unwanted pregnancy, but not from unwanted infection, right? तो ऐसे कुछ कुछ कॉन्ट्रासेप्शंस हैं जो हमारे पास अवेलेबल हैं, जो बच्चों को ऑन द ओवर द काउंटर अवेलेबल है. बट फिर मैं बोलूंगी इट इज ऑलवेज ऑलवेज बेटर टू सी समबडी विदाउट हेजिटेशन. इतना सब स्टेप खुद लेने से पहले, या ले लो और फिर मिल लो कि ऐसा हुआ है तो नाउ व्हाट डू वी डू. ओके, तो एटलीस्ट यू शुड सी समबडी. जी बिल्कुल बिल्कुल मैम. और जो ओपनली इस बारे में बात कर पाए, और आप तो बात कर ही रहे हैं तो नहीं, because see, I'll tell you again, because I gel with that you have to put yourself in somebody else's shoes, then only you can imagine what they're going through. And किसी ना किसी को तो बात करना होगा ना, कोई तो करेगा. कोई तो करेगा. सब चुप रहेंगे तो कैसे बात बनेगी. And I'm seeing a lot of unwanted pregnancies in unmarried girls. We see this day in day out. I've seen a lot of it in when I was in a government setup. See, they go through a lot of pain, a lot of mental health challenges they're facing. तो किसी को तो बात करना है, कभी तो बात करना है, कहीं से तो शुरुआत होगी. कोई शुरू करेगा तो सब शायद साथ जुड़ जाए, पर कोई तो शुरू करेगा. मैम, किस तरह के मेंटल चैलेंजेस आपने देखे हैं? बिकॉज अंडरस्टूड है, बट they are like they go through depression, they go through anxiety. I've seen kids on antidepressants post such traumatic act. कभी कभी कुछ ऐसा traumatic उनके साथ हो जाता है. They are on antidepressants throughout their life. मतलब ऐसे भी cases, extreme cases हैं. We've seen suicides also. See, 1 in 4 suicides जो adolescent में हो रहे हैं, that is mainly because of this mental health challenges only. इसमें से एक सेक्सुअल अब्यूज भी हो सकता है, या मे बी कुछ ऐसा जो हुआ कंसेंट से है, बट देन उसके बाद जो भी उसके आगे कॉन्सिक्वेंसेस हुए उसकी वजह से दे हैव टू गो थ्रू दिस, राइट? तो एक्सट्रीम इज सुसाइड व्हिच दे कैन अटेम्प्ट, बट उससे पहले डिप्रेशन, एंजाइटी एंड लॉकिंग देमसेल्व्स इन अ क्लोज्ड एरिया स्पेस, कि जहां से वो बाहर नहीं आना चाहते हैं. बहुत कुछ है बच्चे जो फेस करते हैं इसके बाद. तो इसीलिए उसमें पढ़ने से अच्छा है कि पहले आप अपने अपने बारे में समझें या लोगों को से बात करें, उसके बाद इतना सब फेस करें. एक 8th क्लास की बच्चे ने मुझसे पूछा था, गर्ल ने, मैम व्हाट इज द राइट एज टू मेक अ बॉयफ्रेंड? हाय, my god, actually very very innocent and sweet question. Very innocent and sweet question. And very difficult to answer. Yes. Again as a guardian you can't tell them. So if I would have been, suppose अगर मैं ऐसे answer as a parent इसको answer करूँ, not as a medical professional, so I would have said कि all your friends who are boys are boyfriends. So you have to be just careful कि आप उनको एक पर्टिकुलर रिलेशन तक ही रखो. मतलब उनकी शायद हमें उनके बॉयफ्रेंड के डेफिनेशन को चेंज करने की जरूरत है बच्चों को. तो उनको आप ये कह सकते हैं कि ठीक है, सब फ्रेंड्स है, कोई एक फ्रेंड है जो आपको अच्छा लगता है, वो लड़की भी हो सकती है, वो लड़का भी हो सकता है, जो आपको ज्यादा अच्छा लगता है. So it is okay to have somebody who you like more than maybe your other friends. So that's absolutely fine. हम लोग हैं, हमें भी कुछ हमारी बेस्ट फ्रेंड्स होती हैं, कुछ कुछ ऐसे लड़कों में भी बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं. तो बॉयफ्रेंड का कंसेप्ट मुझे तो एक्चुअली बहुत बार समझ नहीं आता, बट हाँ ठीक है, तो यही है कि एक फ्रेंड है जो ज्यादा अच्छा है. एज वो है जब आपको कोई अच्छा लगने लगे. दैट इज द एज व्हेन यू फाइंड दैट ठीक है, ये लड़का है जो मुझे ज्यादा अच्छा लग रहा है, ही इज माय फ्रेंड. अगेन एज अ पेरेंट आई विल से उसमें ये जरूर होगा कि यू हैव टू बी केयरफुल दैट यस, इफ दे आर इन्वॉल्वड देन दे आर अवेयर ऑफ बिफोर देयर इन्वॉल्वमेंट, फिजिकल इन्वॉल्वमेंट या कोई भी इन्वॉल्वमेंट. सो बिकॉज पेरेंट्स को पता होता है कि क्या है कैसे, इतना तो आइडिया आई थिंक एज अ पेरेंट सबको लग जाता है. तो थोड़ा सा इससे पहले कि बच्चा कोई स्टेप उठाए, या आपको लगता है कि बच्चा कोई स्टेप उठाने जा रहा है, उनको अवेयर कर देना और उनको थोड़ा सा समझा देना या बता देना ज्यादा बेटर है आई फील. बिकॉज देखिए, हम बहुत हद तक ये सब नहीं कंट्रोल कर पाएंगे, बट कहीं ना कहीं से तो शुरू करना है, कहीं ना कहीं कुछ पॉइंट पे तो उनको हिंट करना है कि बेटा ये सही है, ये गलत है, आप ऐसे करो या ऐसे करो.
जो कपल है, जो उसके 2 बच्चे हो चुके हैं और उसके बाद में अब क्या प्रोसीजर वो ले कि और बच्चे they don't want to have more babies, so what all are options So available we are and talking about contraception basically when you have on completed your family, right? So if we जी talk about it, then for a patient or for a couple who has completed their family, there are certain long-acting contraceptive methods. जिसमें I personally prefer using copper T or an intrauterine device. Okay, because see again as in an Indian scenario, अभी भी हम उसमें हैं कि बच्चे होने ही चाहिए, है ना? तो कोई भी परमानेंट मेथड को चूज करने से पहले you have to be very sure that this is what you need. There is no further need for pregnancy because it is non-reversible. uh, Again, with my 15 years of working in government and non-government hospital, I can say this with my experience. I've seen patients regretting their decision of doing a permanent sterilization because in some mishap or something they lose their child. Suppose one child they lose with due to any mishap. Okay, they come to you and then they regret कि हमने हमें उस टाइम नहीं करना चाहिए था, हमें किसी ने सलाह नहीं दी. ठीक है, तो जब भी आप कुछ ऐसा डिसीजन लेते हैं तो पहले तो आप बहुत श्योर हो जाओ कि life is not going to remain the same always. There is a probability that things may change. So if you're ready for it, please go ahead for it. Okay, but अगर आपके दिमाग में कुछ 1% है कि नहीं, we don't want to go in for such a terminal method कि जहाँ पे हमें permanently ligate करना है, so it is better you use other methods, which includes a oral contraceptive pill, which includes a copper T. Copper T के भी बहुत सारे methods available हैं, copper device है, hormonal device है, सबके obviously अपने फायदे नुकसान हैं. कॉपर डिवाइस के साथ थोड़ा ब्लीडिंग एंड इन्फेक्शन का रिस्क रहता है, बट हाँ बहुत अच्छा प्रेगनेंसी कंट्रोल देता है. एक बार आपको सेटल हो जाए तो 5 साल के लिए लगा लिया, 5 years के बाद यू कैन कीप ऑन चेंजिंग. और इनिशियली यू कैन बी ऑन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आल्सो सेफली. आप 4 से 5 साल ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले सकते हो, उसका कोई ऐसे मेजर आपकी बॉडी पे साइड इफेक्ट नहीं है. इफ देयर इज नो प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन, कोई प्री एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम नहीं है आपको, तो इट डजंट हैव अ मेजर इफेक्ट ऑन योर बॉडी. यू कैन सेफली टेक इट फॉर 4 to 5 years. Then maybe you can shift to a copper T or something like that. Permanent sterilization, again, yes, we can do. I don't discourage, but it should be a well informed decision that we can't change destiny. Okay, अगर 1% कुछ ऐसा होता है, you should be very much okay कि ठीक है. इसमें मैं एक सलाह जरूर दूंगी. I usually avoid doing it along with childbirth, like हम cesarean के साथ जैसे कर लेते हैं. Especially अगर किसी का second baby ही है, हम parents ऑप्ट करते हैं कि नहीं मैम हमें नहीं चाहिए था. ये मेरा सिर्फ पर्सनल टेक है. आई नो मेनी गायनेकोलॉजिस्ट विल नॉट अग्री टू दिस because obviously we have a population explosion also in India. So many of them will not agree to this. But sitting at this place, if I talk about mainly private or maybe rural urban area में patients, or maybe talking to catering to as a private practitioner, so if I speak about, I don't encourage doing a permanent sterilization along with the childbirth. because उस टाइम पे बहुत इमोशनली अनस्टेबल होते हो. वो जो आप डिसीजन लेते हो दैट इज नेवर एवर इन फुल आई से सेंस, और वो तो वो हमेशा तब होना चाहिए जब एटलीस्ट आपका छोटा बच्चा 3 से 5 साल का हो गया. देन यू कैन वेरी वेल गो अहेड एंड टेक दैट डिसीजन. बट मुझे लगता है एक प्रेगनेंसी के अराउंड वो डिसीजन कभी भी जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए, स्पेसिफिकली परमानेंट मेथड्स. बट हाँ, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वी डू एनकरेज दोज हु आर गोइंग टू हैव देयर थर्ड चाइल्ड, मे बी फोर्थ चाइल्ड, उन लोगों को तो इवन आई डू एनकरेज दैट इट इज बेटर यू जस्ट go in for a permanent method. But दूसरे बच्चे के साथ, especially in an Indian scenario, if you don't come from a very progressive background or a progressive thinking, unless and you don't have that, please don't go into that. तो फिर आप और methods use करिए. जी मैम, सब कुछ फीमेल के बारे में हो रहा है, अभी मेल्स कुछ क्या कर सकते हैं? ये मेल वाला जो आप बता मेल्स के रहे लिए भी लाइगेशन अवेलेबल है अगर हैं. परमानेंट मेथड्स की बात करें. अदरवाइज तो उसके अलावा दे जस्ट हैव कॉन्डम्स ओनली. इसके अलावा उनके पास कुछ कॉन्ट्रसेप्शन में नहीं है यूज करने के लिए. परमानेंट मेथड में यस वैसेक्टमी हो सकता है, विच इज लाइक जैसे हम का ट्यूब क्लिप करते हैं, ऐसे मेल्स का भी ट्यूब क्लिप कर सकते हैं या कट कर सकते हैं. हाँ, उसमें ये है कि यू कैन एनकरेज मेल्स टू डू इट बिकॉज इट्स सिंपलर, इट्स सेफर एंड इट इज क्विकर ऑल्सो. द रिकवरी इज हार्डली, बहुत इजी रिकवरी है उसमें. So instead of pushing a female to go in for a sterilization procedure, if you are very much into a permanent method, I think you should actually go and encourage the males to do it because वो easy है, local में हो जाता है. anesthesia सिर्फ local anesthesia के देने की जरूरत है. ओके. एक केयर प्रोसीजर है, आप सुबह और 2-3 घंटे में आप घर चले जाओ, कोई ऐसा बड़ा बेड रेस्ट नहीं, कुछ नहीं. तो मुझे लगता है मेल्स के लिए यू कैन गो इट फॉर अ वैसेक्टमी और मे बी अ
condom use आप कर सकते हो. Males के लिए mainly this is all what we have. जी I think our motto was that we would like to discuss mainly around teenagers and their जी problem with their mental health when they're growing up, problems with what sexual problems they have, how to tackle with a teenage pregnancy, how to tackle a teenage abortion. This is what I think we started with it with an agenda in mind that yes, we'll have a जी discussion around this राइट means. राइट So if we talk about that, I think we've discussed mainly about the mental health problems. Why they go into that mental health problem is mainly because their academic, social, peer stress, and their bodily changes. That is the main जी reason for mental health problems. How to identify a child who's going through that mental health problem is change in the behavior, maybe जी eating pattern, sleeping pattern, becoming more aggressive or becoming more mellowed down. So that is how you can identify. If you have identified, be a good parent, stop shouting, just try and be in their shoes and try to understand what they are going through and try to tackle that pressure out. Okay, if you all and then we go to teenage abortions and pregnancies. If you're less than 18, you have to go through proper channel, and it is always better to approach through a proper channel. You may have initial problems or hesitations, but personally, I trust me, things are changing for good in government hospitals also. People have started accepting things, like they become more empathetic towards these children. You have a social worker coming in with, if a girl is less than 18 years, there's a social worker who accompanies. There's a female constable. In fact, as a doctor, I will say ki in case you feel that something is not right and that girl needs more privacy, that needs more empathy, you can sometimes in fact guide the social worker and the constable also to be more polite and empathetic with them, right? So this is how things are changing for teenage pregnancies. And you have to go through your parents, approach a healthcare professional in case you have accidentally fallen into any such trap, I'll say, or maybe any such accident has occurred. So please consult an healthcare professional. Don't go to any XYZ person and ask for a contraceptive, for an abortion pill, or ask for an abortion. That may become life threatening for you, although the chances are less, but yes, it may become. So it is always a good idea to reach out to an healthcare professional, or at least to your parents. आई नो यू मे हैव इनिशियल चैलेंजेस, पहले हो सकता है माँ बाप गुस्सा भी करे, डांट भी पड़े, सब कुछ हो, बट हर चीज का एक एंड है. सब चीज जो शुरू हुई है वो खत्म होगी ही होगी, राइट? थोड़ी सी डांट खा के, थोड़ा सा सुन के, फाइनली आपके पेरेंट्स है, आपके साथ ही रहेंगे, कहीं और तो जाएंगे नहीं. तो बच्चों को भी ये समझने की जरूरत है कि एक वही है जो आपके साथ है हमेशा. हो सकता है वो कुछ समय के लिए आपसे गुस्सा है, हो सकता है वो कुछ समय के लिए आपको गुस्सा करे, नाराज हो, थोड़ी पिटाई भी कभी कभी कुछ पेरेंट्स कर देते हैं. फिर भी बच्चों के समझने की जरूरत है कि जितना अच्छा हमारे पेरेंट्स हमारे लिए कर सकते हैं, हमारे लिए सोच सकते हैं, उतना कोई भी XYZ कभी नहीं करेगा, ना कभी सोचेगा. So they should approach their parents first. It may be a difficult path, but trust me, it will be the safest path to go through. Okay, kuch bhi aisa hota, it is always through, it should always come through parents, right? And maybe after that, teenage pregnancies, if we talk about, we have abortion laws now which says that yes, you can terminate up to 24 weeks. It is run in specialized centers in Delhi. It is approved. So in case somebody is going through that, they can approach some government hospitals in Delhi through their parents, and maybe they can get it done. And less than 18 years, they need to go through, there's certain formalities which needs to be done, maybe involving the police, maybe involving the social workers. But trust me, वो भी उतना गंदा नहीं होता है. Again, initial challenges आते हैं, but जिस mental state से आप निकल के जो गलत steps आप ले लेते हो, गलत तरह के abortions आप करा लेते हैं, वो बहुत लाइफ पे चैलेंजिंग बन जाते हैं. इसलिए मुझे लगता है कि ये अगर आप पाथ फॉलो करते हैं, तो योर चाइल्ड विल बी सेफ, शी विल बी इन सेफ हैंड्स. एंड आगे का प्रोसीजर भी वो मेंटली बहुत रिलैक्स रहेगी, उसको पता है उसके पेरेंट्स उसके साथ हैं. तो बच्चा इज सो मेंटली रिलैक्स, थिंकिंग कि ठीक है, मेरे पेरेंट्स मेरे साथ है, मेरे साथ कुछ गलत नहीं हो सकता कभी भी. तो यही सेम चीज बच्चों को समझने की जरूरत है और पेरेंट्स को समझने की जरूरत है कि हमें उन्हें वो कंफर्ट देना है कि हम उनके साथ हैं हर चीज में. एंड बच्चे को भी कि पेरेंट्स का भी रोल आ रहा है मैम. लाइक बच्चा तो गलती हो गई और वो एकदम से ट्रॉमा में आ गया, बिकॉज़ दैट्स अ ट्रॉमा सिचुएशन फॉर द चाइल्ड कि अरे ये क्या हो गया, यू नो. तब दे डोंट इवन, शायद ऐसा हम अज्यूम, हो सकता है उस बच्चे का बेचारे का पहली बार ही हो, उसकी कोई अपनी गलती भी ना हो उसमें, हो सकता है वो पहली बार ऐसा हुआ है, शी इज ट्राइंग टू डू समथिंग, और है ना, दोनों लड़का और लड़की के घर में. तो अभी पेरेंट्स को थ्रू यू आई रियली, कि आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि पेरेंट्स को भी एक, नोबडी सेइंग कि भाई एनकरेज करो कि बेटा वाह वाह क्या बात है, बड़ा बहुत एग्जैक्टली, होल्डिंग देम एंड हेल्पिंग देम आउट.
You have to maintain a Parents- balance. Before this session, I was going through few articles about mental health. So they were talking about mental health of parents also in a teenager with pregnancy, because पेरेंट्स भी इक्वल इमोशनल ट्रॉमा से निकल रहे हैं कि उनकी पेरेंटिंग में कहाँ गलती रह गई कि उनके बच्चे ने ऐसा स्टेप लिया. तो पेरेंट्स भी इक्वली ट्रॉमेटाइज्ड हैं इस चीज से. आप ऐसा नहीं समझिए कि सिर्फ आप ही ट्रॉमेटाइज्ड हैं, आपका पेरेंट्स भी इक्वली ट्रॉमेटाइज्ड है. तो बच्चे को भी समझने की जरूरत है कि अब ये सिचुएशन ऐसी है कि उनका रिएक्शन भी जेन्युइन है. तो बच्चे को भी थोड़ा थोड़ा समझना है, पेरेंट्स को भी थोड़ा थोड़ा समझना है. दोनों अगर समझे तो आई थिंक चीजें इजी हैं टू मैनेज. चलते जो मैसेज आप देना चाह रही हैं पेरेंट्स को, स्टूडेंट्स को, फीमेल्स को फॉर देयर हेल्थ एज अ गायनी, एज अ लेप्रोस्कोपिक सर्जन, आपका मैसेज आप क्या देना चाहेंगे प्लीज? A message will be open to your surroundings, be receptive to the feedback you're getting from your children, be receptive, be more friendly with them. And in case of any health related issues, it is always better to reach out to a professional rather than tackling them on your own, thinking कि नहीं ठीक है मैं केमिस्ट से जाके दवाई ले लूंगी, अबॉर्शन आराम से हो जाएगा, कॉन्ट्रसेप्शन के लिए इमरजेंसी कॉन्ट्रसेप्टिव पिल ले लूंगी. तो I think it is always better to reach out to a professional in case you're suffering from anything, your kid is suffering from anything, instead of just saying कि नहीं adolescent है इस टाइम तो बच्चे ऐसे ही करते हैं. In case you feel that you are unable to handle, then please take them to a professional, maybe a psychiatrist, maybe a psychologist, just for a counseling, right? But just don't sit at home thinking कि नहीं इस टाइम तो बच्चों के साथ ऐसा होता ही है. अगर आप नहीं संभाल पा रहे हैं तो प्लीज आप उनको साइकोलॉजिस्ट के पास लेके जाओ. कोई बात करेगा तो शायद वो खुल के बाहर आए, शायद वो खुल के आपसे बात करें, शायद वो उनको अपनी प्रॉब्लम बता दें अगर आपको नहीं बता पा रहे हैं तो. या मे बी अ कॉन्फिडेंट, मे बी दैट मे बी जस्ट एन अंकल एंड आंट, मे बी अ फ्रेंड who's a confidant, and maybe you can just get through them to the child to talk about it कि वो किसके थ्रू निकल रहे हैं या क्या हो रहे हैं. Then maybe you can just try to break that ice with your kids. So it's about just breaking the ice with the kids and just involving with an interaction and reaching out to a healthcare professional when you are in need for it. बहुत सारी टिप्स आपको मिली हैं, टिप्स को आप ध्यान में रखेंगे और बिल्कुल पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, देखिए प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर. तो आपने माइंड का इस्तेमाल कीजिए. थैंक यू सो मच. Thank you so much. Thank you everyone. Thank you Punit. Okay. थैंक यू.